विधायक दल आदरणीय आलमगीर आलम साहब उपस्थित है। मंच पर मेरी दाहिनी अध्यक्ष जी के दाहिनी और प्रवक्ता साथी राकेश सिन्हा जी, सतीश पॉल मुंजली जी उपस्थित है। मोर्चा संगठन के प्रभारी भाई रविंद्र सिंह जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई शमशेर आलम जी भी इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित है। अब मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष जी आप लोगों को संबोधित करें। देखिए, बहुत दुखद घटना कल सामने आई है और आप सब उससे वाकिफ हैं। दुखद ही नहीं, ये निंदनीय घटना है और जिस तरह की बातें सामने आई हैं और जिस तरह का दृष्टांत पिछले दिनों से लगातार देखा जा रहा है, पूरे देश में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनको कहीं न कहीं अस्थिर अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है और उस प्रयास में कई बार भारतीय जनता पार्टी सफल होते भी दिखाई दी है। बावजूद अपनी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही है और आज जो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिस तरह से हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने शिकायत की है थाने में, उससे ये प्रतीत होता है कि सभी विधायकों से भारतीय जनता पार्टी के नेता संपर्क कर रहे थे और कुछ विधायकों को उन्होंने ट्रैप करने का भी कोशिश किया है। हम समझते हैं कि इससे घिनौनी हरकत कोई नहीं हो सकती है, वो चाहे बिकने वाला हो चाहे खरीदने वाला हो। निश्चित रूप से दोनों की निंदा होनी चाहिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह से शिवसेना के विधायकों को तोड़ने का काम किया गया और महाराष्ट्र में हमारी सरकार जो जनता के द्वारा चुन के आई थी उसको गिराने का काम किया गया। तो आप सब समझ सकते हैं कि किस तरह से जो जनता की चुनी हुई सरकार है, जो जनता चुन के देती है, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मतदान करती है और सरकार बनाने का काम करती है, वैसी सरकारों को दिन दहाड़े सरेआम लोकतंत्र की हत्या करके ये बताने का प्रयास किया जा रहा है भारत की जनता को कि चाहे तुम वोट किसी को दो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। इस कृत्य की पूरे देश में निंदा हो रही है और हम समझते हैं कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मद्देनजर हम लोगों ने आज FIR भी दर्ज कराया हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने। मैं उस विधायक द्वारा की गई कंप्लेंट को पढ़ के सुना देता हूं। टू द ऑफिसर इंचार्ज अरगोरा रांची, आई Anup Singh, MLA of Jharkhand, would like to lodge a complaint regarding offer of gratification being offered to me to topple the present government of JMM and Congress, which came to power with a thumping majority. Shri Irfan Ansari, MLA Jamtara, Shri Rajesh Kachchap, MLA, and Shri Vixal Kongari, MLA, are calling me to Kolkata and offering me money, and they are promising 10 crores per MLA. Shri Irfan Ansari and Rajesh Kachchap wants me to come to Kolkata and then take me to Guwahati, where according to him, he will make me meet Shri Hemant Biswa Sharma, who will give me assurance of a definite ministerial berth apart from the money. Irfan Ansari has told me that he has already been promised health ministry in the new government. He also told me that he shall be reaching Kolkata yesterday afternoon. He said that he has already got money transferred to his persons, and once I reach Guwahati and promise it in front of Sri Assam CM Himanta Biswa Sharma, he assured me that Sri Sharma is doing it with the blessing of topple sorts of BJP political party sitting in Delhi. He do not want to be part of his unconstitutional, illegal and downright criminal activity, and hence informing you that me please take action against them who we stationed in Kolkata with token amount and
pressuring me to come to Kolkata and accompany them to Guwahati. Since I do not want to be a part of such criminal offence and indulge in such unethical activity which breaks the constitutional structure of the country, would request you to take action as per Section 7C of Prevention of Corruption Act and 120B IPC and bring this kind of criminal activity to a stop, which strikes at the very heart of the democracy and book the persons as per the provisions of law and law for influencing me for an illegal act in active coalition with others who are operating from behind to topple the present government of Jharkhand with a dangerous design and adopting all sorts of illegal ways by influencing their position being in capacity of public servants. इस बात को लेकर के एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद हमने आदरणीय आलमगीर साहब ने अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी को, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी को इस बात से अवगत कराया है और तत्पश्चात सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। हम समझते हैं कि जो ये हुआ है निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है और आने वाले समय में आप तमाम मीडिया साथियों से भी आग्रह होगा कि आप जिस तरह से लगातार अपनी बातों को कहते रहते हैं और तरह तरह से सारी चीज़ों को सामने लाते हैं, इस चीज़ को भी जरूर लाइएगा कि सिर्फ बिकने वाला ही नहीं, खरीदने वाला कौन कौन है वैसे लोगों पर कार्रवाई हो। क्योंकि हमने देखा है कि पहले जो महाराष्ट्र सरकार गिराई गई उस पर जो विधायक थे उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो बिकने वाले थे उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो खरीदने वाले थे उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द दंडित किया जाए। जो लोग इस खरीद बिक्री खरीद फरोख्त में शामिल हैं उन पर हम लोगों ने एफआईआर किया है। निश्चित रूप से कार्रवाई बहुत जल्द होने की हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं। पूछा जाता है तो उस संदर्भ में जब सवाल ये पूछा जाए कि वो कह रहे हैं कि साड़ी खरीदने के लिए पैसा था, उस संदर्भ में उन्होंने ये बातें कही है, मैं भी था उपस्थित, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ ये हो सकता है। क्योंकि जब हम निलंबन की कार्रवाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है आगे की भी जांच होती रहेगी। जो उनको सूचना मिली थी उन्होंने उस सूचना को पुलिस को देने का काम किया है। नहीं, लेकिन ठाकुर जी जब आप साथ में लेकर के गए अपने विधायक को केस करवाने, तो क्या उसी वक्त आपको विधायक ने बताया कि मुझे भी ऑफर था मंत्री पद का और 10 करोड़ रुपए का, या फिर पहले भी था? और पार्टी को अनूप सिंह ने कब सूचना दी? नहीं, देखिए पार्टी को हमेशा वो लगातार सूचना दे रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि सूचना नहीं मिल रही थी, सूचना मिल रही थी। सारी बातों को जब तक कोई घटना घटित नहीं हो जाती है तब तक हम लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम जब 2 दिन पहले विधायकों की बैठक बुलाते हैं और सारे विधायक शामिल होते हैं तो उस दौरान अगर उनकी बातें कहीं जो जा रही है वो झूठी हो जाती है, लेकिन जब इस तरह की घटना सामने आती है तो बात सच हो जाती है। तो उन्होंने उस बात को नहीं, यहाँ पे आप जो बोल रहे हैं राजेश जी कि पहले सूचना अनूप सिंह ने दिया, हाँ, लेकिन उस समय आपको भरोसा नहीं था आपके विधायक की बात पर। नहीं, देखिए यही नहीं, इसको विधायक की बात पर भरोसा की बात नहीं है। जब भी कोई बात होती है तो उसकी जांच पड़ताल होते रहती है। आप लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं? बिल्कुल। आप जब आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि क्रॉस वोटिंग की बात हुई है, तो हम लोगों ने क्रॉस वोटिंग में लगातार कहने का काम किया कि हम लोग जांच कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, सभी विधायकों से पूछताछ कर रहे हैं। और जो सामने घटित हुआ है तो अब ये प्रमाणित हुआ है कि हाँ एक प्रयास चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कुत्सित प्रयास लगातार करती रहती है। आपने देखा होगा सबसे पहले इस चीज का खुलासा आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने किया था, आप लोगों के समक्ष किया था कि कुछ विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है। तो जिस दिन से सरकार बनी है लगातार इस तरह के प्रयास होते हैं। एक प्रयास जरूर आज तरीके से विफल हुआ है। तो आप लोग से मेरा निवेदन होगा कि आप जो तमाम सवाल पूछ रहे हैं
थोड़ा सा इसको और समझने दीजिए, सारी बातों को सामने आने दीजिए। हम लोग लगातार आपसे मिलने वाले लोग हैं। हाँ, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये जो असम के मुख्यमंत्री की बात आ रही है, असम के मुख्यमंत्री सिर्फ अनूप सिंह क्या को ही हेमंत मिला बिस्वा गया की बात अनूप सिंह से हुई है या किसी विधायकों से हुई है? नहीं देखिए, जिन विधायकों से हुई है, अभी तो आपको ताजा ताजा मामला है, कल रात की घटना है। अभी हम लोग सभी विधायकों से इस तरह की बात पूछताछ कर रहे हैं। जैसे ही फिर कोई बात सामने आएगी तुरंत आपके सामने हम होंगे। मतलब ये बात अनूप सिंह से हुई है? हेमंत बिस्वा की जो मुख्यमंत्री है। नहीं, हेमंत बिस्वा के बारे में वो कहाँ कह रहे हैं कि उनसे बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि इनमें से एक विधायक ने फोन किया और कहा कि हमारी बात हो गई है, अब जो है आप आ जाइए तो आपको सामने में करके बात करा देंगे, इतने का ऑफर है, मिनिस्ट्रियल बर्थ दी जाएगी। इन सारी बातों का उल्लेख किया है उन्होंने। एक सवाल का जवाब दीजिए। इसके पहले अनूप सिंह ने कोतवाली थाना में दर्ज कराया, अब अरगोड़ा थाना में, जबकि वो पीओ पुलिस और ये ऑफेंस का एरिया नहीं बन रहा है। अरगोड़ा थाना में एफआईआर आप लोग ने क्यों करवाया? देखिए, अब ये बात आप अगर पूछेंगे कि किस थाने में अब क्यों कराया, जो थाना समझ में आया वहां जाकर के कर दिया। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सूचना देनी थी, सूचना ये एफआईआर कहीं भी किया जा सकता है। एफआईआर कोई इस तरह का मैटर नहीं है। जीरो एफआईआर कहीं भी मुकदमा होगा। वो कोतवाली थाना में। हाँ, इंटेलिजेंस को लेकर बात हो रही थी। इंटेलिजेंस वहाँ के लोग हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मतलब यहाँ इंटेलिजेंस वहाँ के जो एसपी थे नहीं, वो तो देखिए उन्होंने कंप्लेन खुद किया है, उन्होंने कंप्लेन खुद किया है। अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए? देखिए, हम जांच एजेंसी नहीं है, हमारे विधायक ने एफआईआर दर्ज करा दिया है, अब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। जो भी आया मीडिया से आया, ये एफआईआर जो आज हम कराए हैं ये उस बेसिस पे कि कल कैश पकड़ाया है। अगर ये साबित होता है कि ये कैश उनका अपना है, लीगल है, तो क्या आप उनसे माफी मांगेंगे और एफआईआर वापस लेंगे? देखिए, ये किंतु परंतु का सवाल नहीं का जवाब नहीं दिया जा सकता है। जब इस तरह की बात सामने आएगी तो उस टाइम हम इस टाइम चूंकि लगातार चूंकि लगातार आपसे हम मिलते रहते हैं तो सारी बात बताएंगे समय पर। अगर सारी खबर आज चल जाएगी तो परसों के लिए भी कुछ रहने दीजिए। ठाकुर जी सिर्फ वो जो बहुत महत्वपूर्ण सूचना अपने तक छिपा करके रखे, क्या उनपे भी पार्टी संदेह की नजर से देख रही है? मैंने कहा ना कि कोई छिपा के रखने की बात नहीं है, लगातार सारी बातें जानकारी मिल रही थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।